के बेस पे हमने फिर इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना है। इसके बाद तीसरे बेस पे हमने इक्विलिब्रियम को डिफाइन करना है ऑन द बेसिस ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन के बेस पे। फिर इसके बाद इक्विलिब्रियम को ग्राफिकली हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, और फिर इक्विलिब्रियम के कौन से कंडीशंस हैं, वो कौन से कंडीशंस हैं which we will apply on a reacting system which is a reversible reaction। अगर उस रिवर्सिबल रिएक्शंस को ऐसे कौन से कंडीशंस हैं कि हम प्रोवाइड करें सो दैट इट कैन एक्वायर इक्विलिब्रियम, कि ये इक्विलिब्रियम एक्वायर कर सकेगा। तो सबसे पहले बेटा स्टार्ट करते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम और इसकी डेफिनेशंस की तरफ और इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। कल के लेक्चर में बेटा मैंने आप लोगों को केमिकल रिएक्शन बता दिया। थोड़ा सा मैं एक स्मार्ट रिवीजन आपको बता दूं कि व्हाट इज द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन इज अ process which involves the formation and breaking of chemical bond. During a chemical reaction, the reactants are changed into products, and chemical reaction is represented by chemical equation. फिर equation के दो types हैं, एक word equation और एक symbol equation. In word equation, we write the names of reactants and products. In symbol equations, we write the name, the symbols and formulae of reactants and products. तो ये तो initial information थी। Then I explained about the types of chemical reactions. That chemical reactions, they are of two types: the irreversible reaction and the reversible reactions. Now, what are irreversible reactions? Those reactions which proceed in one direction only are called the irreversible reaction. They only proceed in the forward direction. The reversible reactions, these are such reactions which proceed in the forward as well as the backward direction. In irreversible reaction, stable products are formed which do not decompose into reactants under the given conditions. In reversible reactions, the products which are produced under the given conditions, they decompose to give back reactants. And for irreversible reaction, as it proceeds in forward direction only, so in the forward direction, what happens? Reactants are changed into products. Products are formed. The formation of product is called synthesis. So in irreversible reaction, there is only synthesis occurs. Only products are produced. But for reversible reactions, during the along with the formation of products, these in the forward direction, these products are decomposed in the backward direction into reactants. So reversible reaction in the forward direction involves synthesis, and in the backward direction, reversible reaction involves decomposition. So we will say that reversible reaction, they involve synthesis and decomposition of the products. Then irreversible reaction can never achieve equilibrium. They can never acquire equilibrium. And what is the reason behind it? For equilibrium, the rate of forward reaction must be equal to the rate of backward reaction. It means the reaction should proceed in forward as well as in the backward direction. But we know that irreversible reaction only proceed in the forward direction. There is no backward direction. Therefore, irreversible reactions can never achieve equilibrium. But reversible reactions, if we provide them proper specific conditions, they can acquire equilibrium. वो equilibrium acquire कर सकते हैं. Now, what is equilibrium? Equilibrium है क्या? सबसे पहले equilibrium के इस phenomena को आपको explain करने के लिए diagrammatical illustration इसकी मैं बता दूं. For example, हमारे पास एक reaction है जिसमें दो reactants हैं, carbon monoxide and chlorine gas. These are the two reactants. Carbon monoxide and chlorine are reactants. When they react in the forward direction, they form a product which is called carbonyl chloride. और आप लोग देख रहे हैं कि इस रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन को प्रोसीड रिप्रेजेंट करने के लिए मैं ये एरो यूज कर रहा हूं, स्प्लिट एरो, और इसकी डायरेक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन है आगे की तरफ.
तो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कार्बन मोनोऑक्साइड एंड क्लोरीन दे रिएक्ट टू फॉर्म कार्बोनाइल क्लोराइड व्हिच इज कॉल्ड फास्जीन गैस. बट in the backward direction, carbonyl chloride decomposes to give back carbon monoxide and chlorine. And this reaction is a reversible reaction because it proceeds in the forward as well as in the backward direction. ये forward direction में भी proceed करता है और backward direction में. Forward direction में इस product की synthesis होती है. रिवर्स डायरेक्शन में यही प्रोडक्ट डीकंपोज हो जाता है अपने रिएक्टेंट्स में. अब बेटा अगर हम इनके मॉलिक्यूल्स फॉर एग्जांपल ले लें, कार्बन मोनोऑक्साइड और क्लोरीन, ये रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं. ये रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल्स हैं, अभी रिएक्शन शुरू नहीं हुआ. और ये हैं प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स. प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल एट टाइम जीरो है. प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स नहीं है क्योंकि अभी रिएक्टेंट्स को हमने मिक्स नहीं किया. लेकिन जब रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं एंड दे आर अलाउड टू कैरी ऑन केमिकल रिएक्शन, हाउ डू दे कैरी ऑन केमिकल रिएक्शन? द मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट्स दे कोलाइड विद ईच अदर. इन दीज कोलिजन्स, some collisions are energetic in nature, and in these collisions the previous bonds are broken down and new bonds are formed. In this way, these reactants, they start changing into products. ये reactants products में change होना शुरू हो जाते. तो initially reactant की concentration ज्यादा है. ज्यादा concentration से क्या होगा बेटा? कि जब ये मॉलिक्यूल ज्यादा होंगे, इनके आपस में इंटरेक्शन या कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे और जिसकी वजह से केमिकल रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी. क्योंकि कल मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया था कि केमिकल रिएक्शन इज द रिजल्ट ऑफ एनर्जेटिक कोलिजन अमंग रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स. एंड एनर्जेटिक कोलिजन्स आर दोज कोलिजन्स इन व्हिच द प्रीवियस बॉन्ड्स आर ब्रोकन डाउन एंड न्यू बॉन्ड्स आर फॉर्म्ड. एनर्जेटिक कोलिजन्स क्या हैं? ऐसे कोलिजन्स, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल की आपस में ऐसे कोलिजन्स जिनमें प्रीवियस बॉन्ड, पिछले वाले बॉन्ड टूट जाते हैं और नए बॉन्ड फॉर्म होते हैं. इस तरीके से रिएक्टेंट्स चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में. अब ये जो नंबर ऑफ रिएक्टिंग मॉलिक्यूल्स हैं, जो रिएक्टिंग मॉलिक्यूल की तादाद है, इनको हम कहते हैं कंसेंट्रेशन. कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मींस the number of reacting molecules per unit volume of the reacting system. हमारे पास ये reacting system है, इसके यूनिट वॉल्यूम में जितने मॉलिक्यूल होंगे वो इनकी कंसेंट्रेशन होगी. तो कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स मीन द नंबर ऑफ रिएक्टेंट्स मॉलिक्यूल. इनिशियली रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, जो रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है वो मैक्सिमम है, ज्यादा है, और प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन जीरो है. क्यों? अभी रिएक्टेंट्स को हमने मिक्स नहीं किया है. अब जब हम रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं तो इनके पार्टिकल्स आपस में इंटरेक्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे, रिएक्शन शुरू हो जाएगा. चूंकि इनिशियली रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन मैक्सिमम है तो यहां एनर्जेटिक कोलिजन ज्यादा होंगे और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन फास्ट होगा. इस तरीके से ग्रेजुअली रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल प्रोडक्ट्स में चेंज होते जाएंगे. अब अगर इस फिनोमेना को मेरे बच्चों हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए हम कंसेंट्रेशन को रखते हैं y एक्सिस पे और टाइम रखते हैं हम x एक्सिस पे. कंसेंट्रेशन के लिए हम यूनिट क्या यूज करते हैं? मोल पर डेसीमीटर क्यूब. मोल पर डेसीमीटर क्यूब क्यों लेते हैं? कि मैंने आपको बताया कंसेंट्रेशन का मतलब है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. और मेरे बच्चों नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को हम कैसे काउंट करते हैं? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल बड़े स्मॉलर होते हैं, ये हमें इजीली नजर नहीं आते. तो इनको काउंट करने के लिए डायरेक्ट फिजिकली हम काउंट नहीं करते अपनी आंखों और उंगलियों की मदद से. इनको काउंट करने के लिए हम मोल का कंसेप्ट लेते हैं. तो मोल पर डेसीमीटर क्यूब यानी रिएक्टेंट के मोल्स पर
डेसीमीटर क्यूब ऑफ दिस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टिंग सिस्टम। अगर ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक रिएक्टिंग सिस्टम है, तो इसके यूनिट वॉल्यूम में जितने मोल्स हैं रिएक्टेंट्स के, इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम कहते हैं कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसी तरह ये प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल्स हैं। प्रोडक्ट के ये मॉलिक्यूल पर यूनिट वॉल्यूम, जिसके लिए हम वर्ड क्या यूज करेंगे? मोल, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट्स पर यूनिट मॉलिक्यूल। Beta, these questions, they do not come in long questions. ये सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चंस में मेरी बेटी आ जाते हैं। जो 3 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आता है, उनके लिए ये क्वेश्चन आ सकते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन में नहीं आएंगे। ये डायग्राम जो मैं आपको समझा रहा हूं, ये आपने नहीं बताना, लेकिन मैं इस इक्विलिब्रियम के फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए मेरी बेटी ये स्केचेस ड्रा करता हूं। यू डोंट हैव टू ड्रा दीज डायग्राम, दीज स्केचेस, These are just to explain, सिर्फ आपको बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। तो बेटा मैं आपको बता रहा था कि अगर हम इस रिएक्शन के लिए ग्राफ ड्रा करें, ये रिएक्टेंट्स हैं, इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ये रिएक्टेंट्स की मोलर कंसंट्रेशन है। मोलर कंसंट्रेशन रिप्रेजेंट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट यूज करते हैं। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन क्या होगी? 0, 8 टाइम्स 0। लेकिन जो ही हम इन रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं, दे स्टार्ट इंटरेक्टिंग विद ईच अदर एंड अ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट्स। द फॉरवर्ड रिएक्शन ओनली स्टार्ट्स है। तो रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल चेंज हो रहे हैं प्रोडक्ट्स में, यहां से रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होगी। क्यों बेटा? अगर रिएक्टेंट के फॉर एग्जांपल यहां रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल है 7, तो जब रिएक्शन शुरू हो जाएगा तो ये रिएक्टेंट चेंज होंगे प्रोडक्ट में, तो ऑटोमेटिकली 7 से ये 6 हो जाएंगे, फिर 5 हो जाएंगे, फिर 4 हो जाएंगे, क्योंकि रिएक्टेंट्स के मॉलिक्यूल कंटिन्यूसली कंज्यूम होते हैं, खर्च होते हैं इस प्रोसेस के दौरान। तो इस कंजम्पशन की वजह से रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी। एंड बाय द सेम टाइम प्रोडक्ट्स चूंकि बन रहे हैं, तो इनिशियली प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन टाइम 0 किसे कहते हैं? ये टाइम 0 है जब रिएक्शन स्टार्ट ना हो। लेकिन जब रिएक्शन स्टार्ट हो जाता है तो फिर प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन इंक्रीज होती है। प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रहे हैं, उनकी कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, रिएक्टेंट्स कंज्यूम हो रहे हैं, इनकी कंसंट्रेशन कम होती जाएगी। फिर एक ऐसा स्टेज आ जाएगा कि जब यहां प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल भी ज्यादा हो जाए, तो दे विल आल्सो इंटरेक्ट विद ईच अदर। ये प्रोडक्ट के जो मॉलिक्यूल्स हैं, ये भी एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करेंगे, कोलाइड करेंगे, और यहां भी एनर्जेटिक कोलिजन स्टार्ट हो जाएंगे। अगर यहां भी एनर्जेटिक कोलिजन स्टार्ट हो जाएंगे, तो फिर उन एनर्जेटिक कोलिजन्स की वजह से ये प्रोडक्ट दे विल स्टार्ट डीकंपोजिंग। ये प्रोडक्ट्स ब्रेक करना शुरू करेंगे और बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाएगी। अब जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड करता है, इसको हम RF कहते हैं। RF मींस द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। यहां बेटा RF हम यूज करेंगे, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यानी जिस स्पीड से फॉरवर्ड रिएक्शन प्रोसीड करता है, इसको हम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। और जिस स्पीड से बैकवर्ड रिएक्शन प्रोसीड करेगा, इसको रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन कहेंगे। द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन या बैकवर्ड रिएक्शन भी आप कह सकते हैं। तो इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन ज्यादा है, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन कम है, तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन स्लो है। यानी अगर इस कंडीशन में हम देख लें, मैंने आपको बेटा एक बात बताई थी, मैंने आपको ये बात बताई थी कि जो कंसंट्रेशन है, इट मींस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। कंसंट्रेशन का मतलब क्या है? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इनको हम मेजर करते हैं मोल पर डीएम क्यूब में। यहां मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, तो यहां कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे। यहां मॉलिक्यूल कम है, यहां कोलिजन के चांसेस कम होंगे। और केमिकल रिएक्शन की स्पीड डिपेंड करती है नंबर ऑफ कोलिजन्स पे, नंबर ऑफ एनर्जेटिक कोलिजन्स पे।
अगर ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे तो ज्यादा कोलिजन के चांसेस होंगे और रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी। अब इसमें बेटा अगर इस कंडीशन में आप देख लें, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ज्यादा हैं, प्रोडक्ट के मॉलिक्यूल कम है, तो इस केस में फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी देन रिवर्स रिएक्शन। तो इस कंडीशन में हम लिखेंगे कि द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। जब रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा हो, प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कम हो, तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी, रिवर्स रिएक्शन की स्पीड कम होगी। इस डिस्कशन से एक चीज एस्टैब्लिश हो गई कि द रेट ऑफ रिएक्शन इट डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। If the concentration of reactants is greater, the rate of forward reaction will be greater. But if the concentration of product is greater, the rate of backward reaction will be greater. So we can say that the rate of reaction, it depends on the concentration of reactants and products. जो बेटी एनर्जेटिक कोलिजन है, एनर्जेटिक कोलिजन में बॉन्ड की फॉर्मेशन भी होती है और ब्रेकिंग भी होती है। जिस कोलिजन में बॉन्ड की ब्रेकिंग हो या बॉन्ड की फॉर्मेशन हो, वी विल कॉल इट द एनर्जेटिक कोलिजन। और उन एनर्जेटिक कोलिजन में रिएक्टेंट्स चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। तो बेटी अब शायद आपको आवाज मेरी आ गई होगी। एनर्जेटिक कोलिजन इट इन्वॉल्व्स द फॉर्मेशन और ब्रेकिंग ऑफ केमिकल बॉन्ड। फर्स्ट फेज ऑफ एनर्जेटिक कोलिजन में मेरी बेटी, जी बेटी मैं आपको बता देता हूं। अच्छा मैं बता देता हूं बेटी। तो फर्स्ट फेज ऑफ कोलिजन और सेकंड फेज ऑफ कोलिजन दोनों एनर्जेटिक कोलिजन्स हैं। फर्स्ट फेज ऑफ एनर्जेटिक कोलिजन में बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और सेकंड फेज ऑफ एनर्जेटिक कोलिजन में बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। इस तरीके से रिएक्टेंट्स चेंज हो जाते हैं प्रोडक्ट्स में। अब मेरी बेटी ने एक और क्वेश्चन किया कि डायनेमिक इक्विलिब्रियम और केमिकल इक्विलिब्रियम में क्या डिफरेंस है। There is no difference between dynamic and chemical equilibrium because dynamic का मतलब है keep on moving, कोई चीज मूव कर रही है। अब ये भी मूव में है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज होते हैं और प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज होते हैं। This process keeps on, and due to this dynamics, due to this movement, the reactants are changed into products and the products are again changed into reactants and reactants are again changed into products. As these reactants and products, they start interconverting with each other. So this process continues. Therefore, we call it the dynamic equilibrium. And this dynamic equilibrium is based on chemical reaction. So we also call it the chemical equilibrium. So you may say that chemical equilibrium is dynamic equilibrium because the reaction continues. Reaction रुकता नहीं है. Dynamics का मतलब क्या है? Movement. तो reaction रुकता नहीं है. फॉरवर्ड रिएक्शन में रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज होते हैं, बैकवर्ड रिएक्शन में जो प्रोडक्ट्स हैं वापस रिएक्टेंट्स में चेंज होते हैं, फिर फॉरवर्ड रिएक्शन में दिस प्रोसेस कीप्स ऑन। देयरफॉर दिस इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड द डायनामिक इक्विलिब्रियम बिकॉज द रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन कंटिन्यूज एट द सेम पेस। Reactants are continuously changed into products and the products are continuously decomposed into reactants. Due to this movement, we call it the dynamic equilibrium. इसको हम क्या कहते हैं बेटा? Dynamic equilibrium. I hope आपको समझ आ गई होगी मेरी बेटी। अगर मजीद कोई क्वेरी है तो दोबारा आप क्वेश्चन कर सकती हो। अब आ जाते हैं बैक टू दिस कंसेप्ट कि जब यहां रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन ज्यादा हो, यहां एनर्जेटिक कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे। जब ज्यादा एनर्जेटिक कोलिजन्स होंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी। एंड वी विल राइट RF is greater than RR. In RF, the rate of forward reaction, RR the rate of reverse reaction. During this process, as reactants are consumed, they are changed into products. So the molar concentration of reactants goes on decreasing. And as reactants are continuously changed into products, the concentration of products goes on increasing. जब ये रिएक्शन कंटिन्यू रहेगा, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी। अब इसमें क्या होगा? जब यहां
प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन भी बढ़ जाए, यहां भी एनर्जेटिक कोलिजन स्टार्ट हो जाते हैं और बैकवर्ड रिएक्शन शुरू हो जाता है। इनिशियली बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड, इसकी आर की वैल्यू कम होती है, रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। क्यों? प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन कम होती है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स गोज ऑन इंक्रीजिंग, प्रोडक्ट्स की कंसेंट्रेशन बढ़ती जाती है, तो इसलिए रिवर्स रिएक्शन की स्पीड बढ़ती जाएगी। इनिशियली जब हम रिएक्टेंट्स को मिक्स करते हैं, रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड बहुत हाई होगी। लेकिन एज द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड्स ऑन द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, the rate of forward reaction depends on the concentration of reactants, and as the concentration of reactants goes on decreasing, so the rate of forward reaction will also goes on decreasing. Initially the rate of backward reaction is slow because the concentration of product is low, but with the passage of time, as more reactant molecules are changed into products, so the concentration of products goes on increasing. और चूंकि रेट ऑफ रिएक्शन कंसेंट्रेशन के साथ रिलेटेड है, तो एज द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इंक्रीजेस, द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन आल्सो गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो क्या होगा, एक वक्त में फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम होती जाएगी। इनिशियली ये पोजीशन है, ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसकी स्पीड है, और ये बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड है। तो जब रिएक्शन प्रोसीड करेगा, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड कम होती जाएगी और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होती जाएगी। एक ऐसा टाइम आएगा when the rate of forward and reverse reaction become equal. That is the condition which we call the chemical equilibrium. जिस स्पीड से रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट्स में चेंज हो रहे होते हैं, उसी स्पीड से प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे होते हैं। यानी रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल हो जाता है द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। इस केस में क्या होगा, दोनों साइड पे कंसेंट्रेशन सेम हो जाएगी। जब दोनों साइड पे कंसेंट्रेशन सेम होगी, तो फिर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बिकम इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। दिस कंडीशन ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन इज नोन एज द केमिकल इक्विलिब्रियम। अब क्या होगा, अगर एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होता है, तो बाय द सेम टाइम एक प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा, डीकंपोज होगा। प्रोडक्ट का एक मॉलिक्यूल प्रोड्यूस होगा एंड बाय द सेम टाइम वन मॉलिक्यूल ऑफ प्रोडक्ट विल बी डीकंपोज्ड। इसीलिए हम कहते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जितने प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल प्रोड्यूस हो रहे होते हैं फॉरवर्ड रिएक्शन में, उतने ही प्रोडक्ट्स के मॉलिक्यूल बैकवर्ड रिएक्शन में डीकंपोज हो रहे होते हैं। In the rate of synthesis becomes equal to the rate of decomposition. अब अगर फॉर एग्जांपल यहां मॉलिक्यूल है 10 और यहां मॉलिक्यूल फॉर एग्जांपल 0 है रिएक्शन से पहले, जब रिएक्शन शुरू होगा यहां 10 मॉलिक्यूल इनिशियली होंगे, यहां 0 होंगे, फिर एक मॉलिक्यूल इसमें चेंज हो जाएगा, तो यहां 9 हो जाएंगे, यहां 1। 9 मॉलिक्यूल में कोलिजन के चांसेस ज्यादा होंगे, फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड ज्यादा होगी। 1 मॉलिक्यूल चेंज होगा, फिर नेक्स्ट इंस्टेंट में यहां एक मॉलिक्यूल और आ गया, ये 8 हो गए, ये 2 हो गए, फिर और ये जारी रहा, ये 7 हो गए, ये 3 हो गए, फिर मजीद ये 6 हो गए, ये 4 हो गए, और फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि यहां भी 5 हो गए और यहां भी 5 हो गए। जब मॉलिक्यूल की कंसेंट्रेशन दोनों साइड पे बराबर हो जाए, तो इनमें एनर्जेटिक कोलिजन के चांसेस भी बराबर हो जाते हैं। एनर्जेटिक कोलिजन के चांसेस इक्वल हो जाते हैं, क्योंकि इन एनर्जेटिक कोलिजन्स इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इफ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर इक्वल, then the chances for energetic collision will be equal and the rate of chemical reaction will be same in forward direction and in backward direction. अब अगर फॉर एग्जांपल इस केस में क्या होगा, एक मॉलिक्यूल यहां से मूव करेगा, इधर आएगा, तो इंस्टेंटेनियसली यहां 4 हो जाएंगे और यहां 6 हो जाएंगे, लेकिन बाय द सेम टाइम एक मॉलिक्यूल डीकंपोज होगा तो अगेन रिस्टोर हो जाएगा। यानी एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में चेंज हुआ और इसी वक्त प्रोडक्ट का एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट में चेंज हुआ। तो दोनों साइड पे आप देखेंगे
कि कंसंट्रेशन क्या हो गई, कांस्टेंट। रिएक्शन जारी रहेगा, रिएक्शन विल कंटिन्यू, बट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। और रिएक्शन कंटिन्यू करेगा, मूव करेगा फॉरवर्ड और बैकवर्ड डायरेक्शन में, इसलिए वी विल कॉल इट द डायनेमिक इक्विलिब्रियम। एक मेरी बेटी मुझसे जो क्वेश्चन कर रही थी कि सर ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम हम इसको कहें या केमिकल? डायनेमिक तो इसलिए कहेंगे कि रिएक्शन कंटिन्यू है, रिएक्टेंट्स प्रोडक्ट में चेंज हो रहे हैं, प्रोडक्ट्स रिएक्टेंट्स में चेंज हो रहे हैं, इवन देन देयर कंसंट्रेशन रिमेन्स कांस्टेंट, फिर भी उनकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहती है। वजह क्या है कि अगर एक रिएक्टेंट का मॉलिक्यूल प्रोडक्ट में चेंज होता है फॉरवर्ड रिएक्शन में, तो उसी वक्त एक प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल डीकंपोज होकर रिएक्टेंट में चेंज हो जाएगा। तो एक ही वक्त में दोनों साइड से मॉलिक्यूल इंटरचेंज होंगे, लेकिन उनकी कंसंट्रेशन विल रिमेन कांस्टेंट। तो एट दिस कंडीशन, व्हेन द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट बिकम्स कांस्टेंट, वी कॉल इट द केमिकल और डायनामिक इक्विलिब्रियम। अब इसमें क्या होगा, रिएक्शन शुरू होगा, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन विल गो ऑन डिक्रीजिंग। एक स्टेज आएगा कि रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन मजीद डिक्रीज नहीं होगी, जिस तरह ये कंडीशन है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज होगी, a time will come that the concentration of product will become constant, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन भी कांस्टेंट हो जाएगी, वो भी चेंज नहीं होगी। तो हमें कैसे पता, हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट होती है? यहां भी 5 मॉलिक्यूल है, यहां भी रिएक्शन जारी है, तो इसका मतलब यह है कि कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहे हैं। तो ये जो कर्व है ये कंसंट्रेशन को शो करता है। यहां आके जब ये दिस लाइन स्टार्ट्स रनिंग पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, तो इसका मतलब यह है कि आप कंसंट्रेशन ना डिक्रीज हो रही है ना इंक्रीज, क्योंकि ये लाइन नीचे आए तो कंसंट्रेशन डिक्लाइन को शो करते हैं, और ये ऊपर जाए तो कंसंट्रेशन इंक्रीज को शो करते हैं। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती, यहां आके कांस्टेंट हो गई, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही थी, यहां आके कांस्टेंट हो गई। जिस टाइम पे these lines, these curves, they start running parallel to the time axis, it means their concentration is now constant. अब अगर हम यहां एक ऐसी लाइन ड्रा करें जिसपे ये दोनों लाइन पैरेलल हो जाते हैं सेम, इस टाइम को हम कहते हैं TEQ, the time of equilibrium। ये जो कंसंट्रेशन एक्सिस है ये इनिशियल कंसंट्रेशन है, यानी शुरू की कंसंट्रेशन, और ये जो एक्सिस टाइम, ये जो एक्सिस है इसको कहते हैं फाइनल कंसंट्रेशन, फाइनल कंसंट्रेशन। सो इस केस में when the rate of forward reaction becomes equal to the rate of, जी बेटा अब ये मैं बाद में ये बात बेटा एक्सप्लेन कर देता हूं, पहले मैं ये कांस्टेंट का फिनोमेना आपको एक्सप्लेन करूं कि आप फिर ग्राफ में कैसे बताएंगे। तो मेरे बच्चों, when in a reversible reaction the rate of forward reaction becomes equal to the rate of backward reaction, this condition of a reversible reaction is called the chemical equilibrium। और ग्राफिकली हम इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, y एक्सिस पे हम कंसंट्रेशन रखेंगे और उसका यूनिट क्या है, मोल पर dm क्यूब, और x एक्सिस पे हम टाइम रखेंगे, इसके लिए यूनिट क्या है, सेकेंड। ये जो इनिशियल एक्सिस है कंसंट्रेशन की, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन, और ये जो लाइन है ये फाइनल कंसंट्रेशन। ये जो जगह पे मैंने इस लाइन को यहां इंटरसेक्ट किया, ये है टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम। इस टाइम पे द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल बी इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन। तो मेरे बच्चों, आज का जो टॉपिक था, इस डायग्राम को यूज करते हुए ये पूरे, ये मैंने इसमें तकरीबन कंडीशंस तक ये पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दिए। जी बेटा, जी बिल्कुल, मैं यही एक्सप्लेन कर देता हूं बेटा। अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ द कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स आर डिफरेंट, इवन देन इक्विलिब्रियम इज एस्टैब्लिश्ड। फॉर दिस पर्पस हम दो ग्राफ ड्रा करेंगे। एक ग्राफ जिसमें कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के इक्वल होते हैं, सेम। उस ग्राफ में क्या होगा बेटा, उस ग्राफ में अगर ये रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज हो रही है, इस पॉइंट पे आके कांस्टेंट हो जाएगी। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन फॉर एग्जांपल इंक्रीज हो रही है, तो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इस पॉइंट पे ये भी कांस्टेंट हो जाएगी।
तो इस केस में क्या होगा, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन बराबर होगी, जिस तरह इस डायग्राम में है। 5 मोल्स हैं रिएक्टेंट्स के और 5 मोल्स हैं प्रोडक्ट्स के। अगर रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के मोल्स इक्वल हो जाएं तो फिर इस केस में ग्राफ की कंडीशन क्या होगी, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन। ये रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन है, कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स, और ये कंसेंट्रेशन किसकी है, कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। जब हम रिएक्शन शुरू करेंगे, द कंसेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विल गो ऑन डिक्रीजिंग, द कंसेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट विल गो ऑन डिक्रीजिंग. अ टाइम विल कम that the concentration of reactants and product become equal and they become constant. Equal भी हो जाते हैं, constant भी हो जाते हैं. ये किस वजह से constant होंगे, क्योंकि the rate of forward reaction will be equal to the rate of reverse reaction. एक कंडीशन ये है, और दूसरी कंडीशन ये है बेटा कि it is not necessary, ये जरूरी नहीं है मेरे बच्चों कि जो कंसेंट्रेशन है रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की इक्वल हो, कभी कभी कंसेंट्रेशन डिफरेंट भी होती है। जी वर्दा, वर्दा मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है मेरी बेटी, आप क्वेश्चन पूछें। वर्दा सुल्तान, आई थिंक यू कांट हियर मी। मेरी बेटी अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप पूछ लो मेरा बेटा। तो बेटा ये जो मुझसे क्वेश्चन किया था इकरा अजीम, इकरा अजीम बेटी, मैंने आपको ये बताया बेटी, मैंने तो आपको अनम्यूट कर दिया, चलिए मैं दोबारा आपको अनम्यूट कर देता हूं। नाम बेटी का क्या था ना, आई एम सॉरी आई फॉरगॉट, इफ यू रेज योर हैंड अगेन, यस वर्दा सुल्तान। जी बेटी मैंने अनम्यूट कर दिया है, अब आप बोले। सर जो फिर ये आपने सेकंड कंडीशन में ग्राफ बनाया है, तो सर ये इसमें इक्विलिब्रियम होगा कि नहीं होगा? जी बिल्कुल होगा। ये जो मैंने ग्राफ बनाया है ये बिल्कुल इसी कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा है कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रिवर्स रिएक्शन बराबर हो गए, तब रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन सेम हो गई। तो इस ग्राफ का ये जो कर्व्स हैं ये स्ट्रेटन होने का मतलब यही है कि कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। कंसंट्रेशन कांस्टेंट कैसे होगी, अगर एक मॉलिक्यूल रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का एक मॉलिक्यूल बन रहा है तो बाय द सेम टाइम प्रोडक्ट का एक मॉलिक्यूल डीकंपोज हो रहा है, इस वजह से रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन इक्वल रहेगी। यानी एक फॉरवर्ड रिएक्शन में प्रोडक्ट का एक मॉलिक्यूल बन रहा है और उसी वक्त बाय द सेम टाइम साइमल्टेनियसली प्रोडक्ट का एक मॉलिक्यूल डीकंपोज होता है, तो दोनों साइड पे कंसंट्रेशन इक्वल रहेगी, लेकिन रिएक्शन जारी रहेगा। Rate of forward reaction will be equal to the rate of backward reaction and equilibrium will be established. So this graph explains this condition. ये इस कंडीशन को एक्सप्लेन कर रहा है। और जो फर्स्ट ग्राफ मैंने ड्रा किया है, ये फर्स्ट ग्राफ क्या है कि ये भी हो सकता है बेटा कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिफरेंट हो, लेकिन रेट ऑफ फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन सेम हो। यानी एक प्रोडक्ट का मॉलिक्यूल बन रहा है और एक डीकंपोज हो रहा है, तो फिर दोनों साइड पे कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, लेकिन फिर भी इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश होगा। इसकी एग्जांपल, एक कॉमन एग्जांपल मैं आपको बताता हूं बेटा। एक रिएक्शन है और वो अमोनिया की सिंथेसिस के साथ रिलेटेड है। अमोनिया की सिंथेसिस में आप देखेंगे नाइट्रोजन का 1 मोल, हाइड्रोजन के 3 मोल्स, दे रिएक्ट and they form 2 moles of ammonia gas. अब आप देख रहे हैं यहां रिएक्टेंट्स के कितने मोल्स बन रहे हैं 4, प्रोडक्ट्स के कितने मोल्स हैं 2। हैबर प्रोसेस इसको हम कहते हैं, इंशाल्लाह आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा। इस रिएक्शन में रिएक्टेंट्स के 4 मोल्स हैं और प्रोडक्ट्स के 2 मोल्स हैं, लेकिन अगर इसमें रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू द रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, तो इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड और फिर ये ग्राफ बनेगा। तो रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन डिफरेंट होगी, लेकिन चूंकि फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड सेम हो गई तो इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड। आप ये कह सकते हैं कि आप एक क्लासरूम में बैठे हुए हैं। जी बिल्कुल, ये कंसंट्रेशन वेरी करेगा तो तब ये ग्राफ बनेगा फर्स्ट ग्राफ। ये मरियम शाहिद, अगर कंसंट्रेशन मेरी बेटी डिफरेंट हो,
इस तरह इन केस ऑफ दिस रिएक्शन फिर ये ग्राफ बनेगा क्योंकि यहाँ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन